رب زدني علما. Okay. Okay, ji, in last lecture, we moved from tangible non-current assets towards intangible non-current assets, and we did IS 38. We did a criteria that is pirate or sector, and we studied the crux was the research and development related to research and development cost. Research cost will be expensed out, and development cost will be capitalized if that fulfills that criteria. And in subsequently, every year it will be reviewed, and in any year it will be if it seems that that criteria doesn't meet, so all the costs which have been capitalized that should be expensed out. Once the cost has been expensed out, that cannot be capitalized again. Then we move towards gradually we move towards the tangible current assets in which we covered IS2. The crux of IS2 was inventory should be valued at lower of cost or NRV. Okay, so you can see my screen, right? Yes. Okay, so today we are doing another IS, which is IS 41, which relates to somehow current assets, right? But that is not inventory. How it relates to somehow current assets, we'll study. Scope of IS 41. IS 41 agriculture related to agriculture, like the name of IS 41 is agriculture, which relates to biological assets, common grants, and agricultural produce at the point of harvest. So that's very, very important international accounting standard. Often this this standard is ignored while anywhere the IFRS or FCR is being taught, or even though, let me tell you, even the assessors who assess the like assess for some qualification or something, they also miss assessment on this international accounting standard, but it's equally important. Why it is equally important? Because it relates to agriculture. Now, whenever we think about agriculture, we say that okay, there will be crops, there will be fields. No, it's not about that. It's about biological assets and government grants. How will be proceeding forward? Let's read it. It says products which are the result of processing after harvest will be dealt with under IS2 inventories or other applicable standards. So, till the time of harvest, the product before the time of harvest, I should be saying point of harvest, the products are treated as per the guidance of IS 41. But after the harvest, it will be treated under IS2. For example, I'll be giving you example over here. Let's take an example. Uh, Whenever we say that agriculture, so agriculture means there are crops, say wheat crops. Now wheat is harvested. Now that wheat will be regarded as IS2. It will be shifted as IS2. How will be shifting? What will be the measurement? What will be the cost? Will be studying later on. But what about a cattle field, right? एक इन सिंपल वर्ड्स में कहता हूँ एक बिजनेस है जिसने भैंसें रखी हुई हैं, जिसने काउज रखी हुई हैं और वो दूध जो है सेल करता है. Now, what is the point of harvest? Point of harvest when they are milking a cow. Once they have milked the cow, that milk will be treated as inventories. Before that point, that will be regarded as IS 40. That will be treated under guidance of IS 41. Let's go ahead. We have a table which specifies which can be the biological assets, which can be agricultural produce, which can be product resulting from processing after harvest. We'll study it. Okay. For example, sheep is a biological asset, right? Wool is agricultural produce from uh, that sheep, and that will not be included in the for IS 41 after the harvest, after the point of harvest. So it's agriculture produces wool, and products resulting from processing after harvest, that is outside of scope of
IS 41, that is yarn or carpet. Now, that's why this is important, like which IS should be applied on it. For example, another biological asset is trees in timber plantation. What is agriculture produce? That's felled trees, जो गिरे हुए दरख्त हैं. Or what is the product resulting from processing? That is logs or lumber and all that. Now, what is biological asset? For example, dairy cattle. What is the agriculture produce? That is milk. And what is the product resulting from that milk? That is cheese. And there are thousands of examples for it, right? Let's study what is biological asset. IS 41 says a biological asset is a living animal or plant. Living animal or plant means, for example, the crops of wheat are biological assets, right? So the sheep, the herd of sheep are also biological assets. A biological asset should be recognized if it is probable that economic benefit will flow to the entity. The cost or fair value of the asset can be reliably measured, and the entity controls asset. If you critically see this definition, so you'll come to know that this is the definition of asset as well. What is the definition of asset which is provided by conceptual framework? That is a resource controlled by entity from which future economic benefit will inflow to the entity. Now, in that case, in biological assets, because these are the living plant or animal, there is some uncertainty involved in it. That's why we are using the word probable economic benefit. We are not certain about it, but we are probable about it. What is probable? Probable means there are more than 50% chances that it will happen. And the cost or fair value of the asset can be reliably measured, and the entity controls the asset. This is actually, in a nutshell, this is a example. This is a definition of assets, the normal assets. Now, how will recognize and measure those biological assets? They say that initial measurement at fair value less any estimated point of sale cost. एग्जाम्पल इसकी क्या है? एग्जाम्पल है, आप herd of cows लेते हैं, ठीक है? You buy a herd of cows for the purpose of harvesting a milk. तो होगा क्या? उसकी fair value जो भी है, let's suppose a cow, if we talk about in Pakistani rupees, if we say like 2 लाख की cow है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, और वो काव खरीदने के लिए या बेचने के लिए आपको कोई कमीशन, कोई मंडी का किराया देना पड़ता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन देनी पड़ती है, तो उसको माइनस कर देंगे, तो इनिशियल रिकग्निशन विल बी ऑन फेयर वैल्यू. इफ देयर इज नो फेयर वैल्यू देन द कॉस्ट मॉडल शुड बी यूज्ड. अगर फेयर वैल्यू नहीं है, विच इज वेरी वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है कि फेयर वैल्यू ना हो बायोलॉजिकल एसेट की, नॉर्मली होती है, बट इफ दैट्स नॉट देयर यू कैन यूज द कॉस्ट मॉडल एज वेल. सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, साल के साल क्या करेंगे? रीवैल्यू टू फेयर वैल्यू लेस पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट एट ईयर एंड, टेकिंग एनी गेन और लॉस टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. देखिए एग्जांपल लेते हैं हम, एक काउ थी, मतलब हम लोग उसे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. देयर वाज वन काउ और देयर वाज वन क्रॉप, ठीक है? क्रॉप भी आप उसको मेजर कर सकते हैं जो है वो उसके स्क्वायर फीट की बेसिस पे. आपने क्या किया? आपने जब इनिशियली रिकॉग्नाइज किया, आपने किया 2 लाख, मतलब माइनस करने के बाद पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट माइनस करने के बाद दैट वाज 200,000. अब आपने साल के बाद एट द ईयर एंड आपने उसको रीवैल्यू किया. दोनों केसेस हो सकते हैं. वो काउ, क्योंकि अब बड़ी भी हो जाएगी ना काउ, इट्स अ बायोलॉजिकल एसेट, ये लिविंग थिंग है, तो विद द पैसेज ऑफ ईयर वो बड़ी भी होगी. अच्छा, समटाइम्स कुछ चीजें ऐसी होती है बड़ी होने से वो खराब होती है, तो दोनों वे में क्या होगा? या तो उसकी फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी या उसकी फेयर वैल्यू कम हो जाएगी. अगर उसकी फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप क्या करेंगे? 2 लाख थी, अब आप 2,40,000 फॉर एग्जाम्पल 240 पे पहुंच गई, तो आप 40,000 से इंक्रीज कर देंगे. आप एंट्री क्या पास करेंगे? अब एंट्री इंपॉर्टेंट है. आप एसेट को 40,000 से डेबिट कर देंगे क्योंकि बढ़ा दिया ना. तो क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट आप करेंगे गेन टू द इनकम स्टेटमेंट. आप गेन ले जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में 40,000 का, एंड वाइस वर्सा. अगर डाउनवर्ड गई तो आप क्या करेंगे? आप एक्सपेंस बुक कर देंगे इनकम स्टेटमेंट में, एक्सपेंस टू लॉस टू इनकम स्टेटमेंट 40,000 का, और उधर से एसेट को डीवैल्यू कर देंगे 40,000 से एसेट को क्रेडिट करके, राइट? ओके जी, ये तो हो गया बायोलॉजिकल एसेट का, जो कि 41 में होगा. एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट द डेट ऑफ हार्वेस्ट, the produce should be recognized and measured at fair value less estimated cost to sell.
अच्छा, अब मजे की बात बताओ। जी जी, कुछ कह रहे हैं? ओके, प्रकाश साहब आपका आई गेस माइक ऑन है, आप माइक ऑफ कर लें। सॉरी सर जी। नहीं कोई बात नहीं, सॉलिड हम अपने ही है, मैंने सिर्फ वैसे ही बताया। समटाइम्स ऐसे होता है, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, थोड़ा बोरिंग बोरिंग हो गया। समटाइम्स ऐसे होता है, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ ना, आप तो है ही प्रोफेशनल है, यू आर स्टडिंग फॉर द नीड, तो बच्चे नहीं पढ़ते ना। तो वो मेरे हाथ से शायद आगे भी मैंने आपको बताया था। तो एक दफा मैं एक क्लास को पढ़ा रहा, तो सडनली उसका कैमरा ऑन हो गया। पहले माइक ऑन हुआ, फिर कैमरा ऑन हुआ, तो वो बाइक पे बैठे हुए कहीं जा रहे थे। दिस ऑल्सो हैपन, तो नो इश्यूज एट ऑल। अच्छा जी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जी व्हाट इज जी व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जो कि आपने हार्वेस्ट करनी है बायोलॉजिकल एसेट से। अच्छा, अब इनमें बहुत थिन सा डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है अभी पढ़ते हैं। एट द डेट ऑफ हार्वेस्ट द प्रोड्यूस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। वही रूल है मेजर करने का। गेन्स और लॉसेज ऑन द इनिशियल रिकॉग्निशन आर इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द पीरियड आफ्टर द प्रोड्यूस हैज बीन हार्वेस्टेड। IS 41 सीज टू अप्लाई। एक दफा आपके पास, आपने मिल्क कर लिया, आपने वीट उतार ली, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिकम एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल at the point of harvest is taken as cost for the purpose of IS2 inventories which is applied from then onwards। तो हम लोगों ने पढ़ा था इन्वेंट्रीज किस पे मेजर होती है, कॉस्ट और एनआरवी पे। तो डेफिनेटली हम लोग जब इन्वेंट्री खरीदते हैं तो उसकी कोई कॉस्ट होती है ना, तो विच विल बी दैट कॉस्ट? कॉस्ट होगी वही जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, दैट विल बी टेकन इट्स कॉस्ट। अब ऑनवर्ड जो है IS2 अप्लाई होगा उसके ऊपर। इन केस गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल जाती है बायोलॉजिकल एसेट्स के केस में, गवर्नमेंट ग्रांट देती है, जो कि हम लोगों ने गवर्नमेंट ग्रांट का पूरा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग पढ़ा। कहते हैं इफ IS 41 applies to government grants related to biological assets, unconditional government grants received in respect of biological assets measured at fair value are reported as income when the grant becomes receivable. If such a grant is conditional, including where the grant requires any entity to engage, not to engage in certain agricultural activities, the entity recognizes it as income only when the conditions have been met। तो बहुत सिंपल सा है, अगर अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है, तो आपको मिल जाएगी। अगर कंडीशनल है, देखिए कंडीशनल कैसे हो सकती है। आप क्रॉप्स के ऊपर कोई ऐसा स्प्रे यूज करते हैं, कोई ऐसा पॉइजन यूज करते हैं जो कि आपको कीड़े वगैरह नहीं आने देता, लेकिन उसको आपकी यील्ड को बढ़ाता है। अब गवर्नमेंट वांट्स टू discourage that use। Now what government will say? Government say, okay, we'll give you the grant related to that biological asset, but the condition is you will not be using those poisons। ठीक है, इसी तरह हर्ड ऑफ कॉज में भी आ सकता है, जो मिल्क के लिए, मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, हार्मोनल इंजेक्शन। वो गवर्नमेंट कहती है आप नहीं लगाएंगे, जब टेस्ट होगा दूध का तब हम फाइनल करेंगे इसमें है कि नहीं। दीज आर ऑल द थिंग्स। अब कहते हैं IS 41 does not apply to intangible assets definitely, or to land related to agricultural activity। Intangible assets are measured by cost or fair value model in accordance with IS 38 जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। Land is not a biological asset, it is treated as tangible non-current asset in IS 16, और जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ट्रीट होती है। एक एग्जांपल करते हैं इसकी, थोड़ी सी हमें समझ भी आ जाएगी थोड़ा सा जो हम लोगों ने पढ़ा है कि वो क्या है। ठीक है जी, कहता है a herd of, let me open an Excel sheet first। ओके जी, तो मैं आपको एक्सेल शीट मेरी नजर आ रही है ना? है भी है कि नहीं? हाँ है। लेट्स रीड इट। क्या कहता है जी? इट सेज अ हर्ड ऑफ 5
4-year old pigs, हम इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है, हम वी डोंट से पिग, हम इसको कॉल कर लेते हैं herd of 5 4-year old cows was held on 1st January 2023, ठीक है जी। तो क्या हुआ 1st January को, लेट मी राइट इट ओवर हियर, 1st January, 1st Jan 2023 को 4 काउस थी, ठीक है। अच्छा, on 1st July 2023 4.5-year old cow was purchased for 212, okay। so 1st July 2023 को एक और काव खरीदी। अच्छा, जो 1st जुलाई को था, हमारे 1st जैन को था, वो 4-year old थी, और ये जो एक और काव खरीदी वो थी 4.5 years old। तो एक्चुअली तो देखिए, ये जो आपके पास थी, ये चार, ये भी तो 4.5 ईयर की हो गई होंगी ना आफ्टर 6 months, वो भी बढ़ गई होंगी डेफिनेटली, और एक आपने और खरीदी। तो अब आपके पास 1st जुलाई 2023 को है क्या, अब आपके पास टोटल जो है, अगर मैं यहां पे लिखूं टोटल, तो टोटल यू हैव 5 cows ऑफ 4.5 years old, क्योंकि पांचों की पांचों 4.5 year old हो गई, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आगे आते हैं, कहते द फेयर वैल्यू एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट वर, जो 4 साल वाली काउ है 1st जनवरी को, उसकी वैल्यू थी $200 की, मैं यहां लिख देता हूं $200 की, जो कि टोटल आपके पास होगा पर काउ, तो आपके पास टोटल हो जाएगा $800, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ, जो आपने खरीदी जुलाई में, उसकी थी 212, अच्छा इसको माइनस किया हुआ है उसने, ठीक है, तो वो थी 212 की, $212, तो ये आ गया $212। ओके, अच्छा जी, अब वो कहते हैं पिक 5-year old काउ एट 31st December 2023 230 का, तो रिक्वायर वो क्या कर रहा है, वो कहता है जी कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी टेकन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2023। देखिए अब क्या हुआ, अब वो कहता है 31st December 2023 को क्या हुआ, अब देखिए 31st December 2023 को आपके पास पांच की पांच जो कॉज हैं वो कितनी हो गई हुई है, वो 5 years की हो गई है, क्योंकि साल पूरा गुजर गया ना, जिसकी वर्थ कितनी है $230 की, और जो टोटल हो गई होंगी कितने की, 5 × 230। ओके, तो ये कितने की हो गई है टोटल, ये हो गई है आपके पास $1150 की। देखिए ये तो आपने रिपोर्ट कर देना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा क्या जाएगा, एक तो जाएगा कि आपके पास जो काउ थी वो 200 से 230 पे गई, 4 काउ, तो अगर मैं इसको यहां पे कैलकुलेट करूं, बल्कि मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं इंक्रीज, तो इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज हुआ, ये वाली जो काउज है ये साल के बाद 200 से 230 पे चली गई, इसका मतलब इंक्रीज आया $30 का। कितनी काउज है, 4 काउज है, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हमारे पास हो जाएगा $120 का, ठीक है। अच्छा, इसका कितना इंक्रीज आया, इसका आया 212 से चली गई, 212 से चली गई 230 पे, तो कितना इंक्रीज आया, ₹18 का, तो मल्टीप्लाई बाय 1,
ये हो गया कितना, $18। ठीक है, टोटल कितना हमारे पास इंक्रीज आया, टोटल आया हमारे पास इंक्रीज $128 का, $128 का इंक्रीज आया, जो कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अच्छा, अब इसको यहां से वेरीफाई करते हैं। आपके पास चार 1 जनवरी को आपके पास कितनी थी, आपने रिकॉर्ड किया $800 पे, और 1 जुलाई को आपने और खरीदा, तो आपके पास टोटल कितना था, अगर मैं आपको यहाँ पे टोटल में भी करके दिखाऊं तो एट हंड्रेड एक्सक्यूज मी सर जी, डॉलर जी जी, 138 नहीं आएगा? हाँ सॉरी 138, यू आर राइट, 138। अच्छा, 800 प्लस टू $12, बस मैं इसीलिए चेक कर रहा था आप जाग रहे हैं कि नहीं। ठीक है, $1012 ये आपके पास टोटल थे 31 दिसंबर से पहले। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, उसकी वैल्यू हो गई $1150 की। तो कितना फर्क आ गया, आपके पास फर्क आ गया $138 का। ठीक है, तो आप यहां से इस तरह करके निकाल ले या इस तरह करके निकाल ले, और ये आपका कहां चला जाएगा, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा एज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि इंक्रीज हुआ है। और आपके जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगे वो इतने से रिकॉर्ड होंगे, 1150। ठीक है जी, कोई सवाल यहां तक, कोई सवाल नहीं, ओके। नहीं इसमें नो सर, ओके। इसका एक और छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, अभी तो ये सिर्फ बायोलॉजिकल एसेट पे था। अब हम एक तो छोटी सी और एग्जांपल करते हैं जो कि रिलेटेड होगी इससे, जिसमें बायोलॉजिकल एसेट भी होगा और जिसमें हार्वेस्ट होके हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी आई है। लेट्स रीड इट, क्या कहता है, कहता है मैकडोनल्ड्स ऑपरेट्स अ डेयरी फार्म एट 1 जनवरी 2021, he owes 100 cows worth 1000 each. So let me write data over here. क्या कहता है जी, कहता है 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2021 को कितनी काउस थी उसके पास, उसके पास थी 100 काउस, 100 काउस थी, और $1000 ईच, यानी उसके पास कितना हो गया, टोटल हो गया उसके पास $1,00,000। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक मिनट सिर्फ, अच्छा जी, $1,00,000 हो गया। अब वो क्या कहता है, वो कहता है जी एट 31 December 2021 he owns 105 cows worth 1100 each. ओके, 31 दिसंबर को क्या हुआ। अच्छा, कुछ चीजों के ना लॉजिक, ये जब क्वेश्चन देता है ना कुछ चीजों के लॉजिक नहीं देता। मैं खुद इसकी लॉजिक में थोड़ा सा परेशान हूँ कि 100 काउस जो है वो 105 काउस साल के बाद कैसे हो गई होगी, होंगी भाई। तो वो कितने की है, $1100 ईच। ठीक है जी, तो ये कितना बन गया, ये बन गया। अच्छा, ये उसने अब उनकी वर्थ बता दी है, ठीक है, तो ये कितनी बन गई जी, ये बन जाएंगी इज इक्वल टू 1100 मल्टीप्लाई बाय 105, एंटर किया, ये बन गया 115500 ठीक हो गया जी। अच्छा, अब क्या कहता है, कहता है ड्यूरिंग 2021 he sold 40,000 gallons of milk at an average price of 5 gallon। ये सेल्स होगी। when cows are sold at a local market the auctioneer charges a commission of 4%। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो दोनों अमाउंट्स है ये फेयर वैल्यू तो है, लेकिन इसमें से हम लोगों ने लेस कॉस्ट टू सेल नहीं की। ये क्या है, ये फेयर वैल्यू है, और कॉस्ट टू सेल कितनी है, कॉस्ट टू सेल होगी 4%। तो दैट मीन्स लाख का 0.04% इज कॉस्ट टू सेल, और इसी तरह 115500 का 4% विल बी
कॉस्ट टू सेल, ये कॉस्ट टू सेल है, तो हमारे पास जो है वो अमाउंट क्या आ जाएगी, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, जो नेट अमाउंट आ जाएगी दैट विल बी दिस वन, और ये कितनी आएगी 115500 एंड दैट विल बी 0.04 एंड, ठीक है जी, सॉरी 0.9, ये हो गया जी हमारे पास जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। ठीक है, अभी सिर्फ हम पढ़ते जा रहे हैं और हम लोग जो है वो डेटा को लिखते जा रहे हैं। अब क्या कह रहा है, कहता है जी show extract from financial statement for 2021 for these activities assuming that no cow were purchased or sold during the year। ओके, तो कोई परचेज नहीं हुई, कोई सेल नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे जी, एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, तो बना लेते हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, अच्छा जी, वो क्या आएगा, उसने मिल्क बेचा, तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ ऑफ मिल्क, कितना बेचा जी उसने, उसने बेचा 40,000 लीटर बेचा, लेट मी था 40,000 लीटर बेचा $5 के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ गया रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ मिल्क। इसमें ऐड हम क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे गेन। अब गेन हुआ, गेन ऑन बायोलॉजी, गेन ऑन बायोलॉजिकल एसेट्स, वो कितना गेन हुआ जी, वो गेन हुआ, ये देखिए आपके पास साल के स्टार्ट पे थी 96,000 की, और अब होगी 110880 माइनस 96,000, तो ये आपके पास गेन आ गया। इसको मैं जमा इसलिए नहीं कर रहा, वी डोंट नीड टू ऐड इट अप, उसका रीजन ये है कि हमें जरूरत ही नहीं है इसको ऐड अप करने की, क्योंकि इसका फाइनल आंसर नहीं आएगा। एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे बायोलॉजिकल एसेट्स, जो कि नॉर्मली हम कैरिंग वैल्यू का वर्ड नहीं यूज करते। ठीक है, उसका रीजन ये होता है, उसका रीजन ये होता है बायोलॉजिकल एसेट के कैरिंग वैल्यू का वर्ड यूज ना करने का, कि कैरिंग वैल्यू का वर्ड हम यूज करते हैं जब हम लोग कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कैरिंग वैल्यू का वर्ड यूज नहीं करते। बायोलॉजिकल एसेट्स कितने के आपके पास आगे, बायोलॉजिकल एसेट रिपोर्ट होंगे 110880, और ये क्यों रिपोर्ट होंगे, कि आपका जो गेन है 110880 माइनस 96,000, वो जो है यहाँ पे चला गया। ठीक है जी, ये एक्सट्रैक्ट हो गए हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के। कोई सवाल आप लोगों को, कोई सवाल नहीं है, वेरी गुड। अच्छा, अब चूंकि मेरे पास 3 मिनट रह गए हैं, मैं इसको यहाँ पे बंद कर रहा हूँ मीटिंग को। आप जो है वो 7 से 8 मिनट लगेंगे नई मीटिंग होने पे। अगला हमारा जो स्टैंडर्ड होगा वो है IFRS 5। अच्छा, ये भी बड़े मजे का है, क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोगों ने एक थोड़ी सी रिदम सा पकड़ा हुआ है। क्या रिदम पकड़ा हुआ है, हम लोग मूव किए टेंजिबल नॉन करंट एसेट से टेंजिबल, इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट से, फिर हम लोग करंट एसेट पे मूव किए, करंट एसेट से फिर हम लोग अब मूव कर रहे हैं कि जहां पे नॉन करंट एसेट्स की क्लासिफिकेशन हम लोगों को एज अ करंट एसेट करनी पड़ती है, एंड दैट इज बेसिकली IFRS 5। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग जो पहले फोकस कर रहे हैं वो है जो कि प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि काम भी आते हैं। ठीक है जी, अच्छा जो है वकास साहब है ना, वकास साहब थोड़ा सा लेट आए थे। वकास साहब, हम लोगों ने ये आज डिसाइड किया है कि हम लोग जो अपना क्विज है वो लास्ट हाफ एन आवर पे करेंगे, ताकि अगर आपको ज्यादा भी टाइम चाहिए होता है उसके लिए, तो यू कैन टेक दैट टाइम। ठीक है ना, तो हम पहले लेक्चर, आगे ठीक भी हो हम यही ठीक क्या हो करेंगे, ठीक हो। आगे भी हम यही किया करेंगे कि 9 बजे हम
लेक्चर शुरू कर लिया करेंगे और आखिरी हाफ एन आवर हम लोग क्विज का रखा करेंगे, ठीक है ना, सही। ताकि भागम भागम दौड़ ना रहे। आप आराम से, आपके पास टाइम हो, आप बैठ के स्कूल से आप घंटा भी ले लें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मकसद ये है कि आपने लर्न करना है, ठीक है ना। जी सर। ओके जी, मैं अभी यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, मैं आपको भेजता हूँ नया लिंक इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सही सही। अच्छा। Just before break, we were discussing about those non-current assets which International Accounting Standard or IFRS says that they should not be included in non-current assets, rather they should be included in current assets. Now we are starting the another IFRS, International Financial Reporting Standard, with the name non-current assets held for sale and discontinued operation. Another very important जो IFRS है, देखिए ये है क्या। सबसे पहले तो वी डिस्कस इट, हम इसको नटशेल में डिस्कस करते हैं, फिर डिटेल पढ़ लेंगे। देखिए है क्या, वो कहता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं वेयर some operations are discontinued due to any reasons. We'll study those reasons. Now, if the operations are discontinued or they are not even discontinued, but you are selling the assets, you are trying to sell your non-current assets, ठीक है जी। देखिए नॉन करंट एसेट्स जब भी एंटिटी बाय करती है, तो द पर्पस, द इंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज टू यूज इट for the operations, for the generation of revenues and depreciate over the years। यानी जो द कॉस्ट ऑफ एसेट है, नॉन करंट एसेट है, दैट आर प्रिंसिपली रिकवर्ड थ्रू यूज ऑफ इट, ठीक है, जो कि प्रिंसिपली रिकवर होती है बाय यूजिंग द एसेट। बट इफ द कंपनी इज नॉट प्लानिंग टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ एसेट by utilizing it, by using it, rather they are planning to recover or get the cost of asset, value of asset by selling it, ठीक है। Then IFRS 5 says that those non-current assets should not be stated under the category of non-current assets, and they should be stated under the category of current assets। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट होगा once that classification is changed, you can no further, you means the entity can no further take depreciation on those kind of assets। अब कंपनी जब depreciation नहीं ले सकती, तो the expenses will be reduced। when the expenses will be reduced, so definitely your profits will go up। अब इसके अगेन दो तरफ चीजें जाती हैं। देखिए अब यहाँ पे दीज आर द स्टैंडर्ड पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, बट इट्स एप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। इसको कैसे हेरा फेरी की जा सकती है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नाउ इन ईदर केस, इफ यू ट्रांसफर द नॉन करंट एसेट्स फ्रॉम non-current to current asset, so what will happen? You don't have to pay you don't have to charge depreciation. Your profit will go up. Let's suppose the entity is planning to go into the IPO, then they want to show the good projection, profit projection. That is an option. That is only an option I'm telling you. तो IFRS नहीं बताता ये ऑप्शंस को, बट दैट कैन बी यूज। मैं सिर्फ इसकी क्या कहना चाहिए, इसकी पॉजिटिव यूज, पॉजिटिव तो नहीं कहना चाहिए, इसके यूटिलाइजेशन की तरफ जा रहा हूं। सो लेट्स रीड इट। ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS 5 आर टू बी सेट आउट। क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स फॉर द क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन। देखिए तीन चीजें गई हैं, ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे अभी। क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्या नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में उसको लेके आना है, नहीं लेके आना। मेजरमेंट, अगर नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में नहीं आना, तो फिर उसकी मेजरमेंट कैसे होगी? क्या कॉस्ट मॉडल लगाएंगे, क्या फेयर वैल्यू मॉडल लगाएंगे? तो कॉस्ट मॉडल तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि कॉस्ट मॉडल जब लगता है तो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। एंड प्रेजेंटेशन, वेयर इट शुड बी प्रेजेंटेड एंड हाउ इट शुड बी प्रेजेंटेड of non-current assets held for sale, in particular requiring that such assets should be presented separately on the face of statement of financial position। तो वो रिक्वायर क्या करता है, वो कहता है प्रेजेंटेशन के लिए दे शुड बी सेपरेटली प्रेजेंटेड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ताकि पता लगे दीज आर एसेट, दिस इज द क्लास ऑफ एसेट विच इज हेल्ड फॉर सेल।
उसके बाद क्या कहता है अपडेटेड रूल्स फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, in particular requiring that results of discontinued operations should be presented separately in the statement of profit and loss, and in case अगर कोई discontinued operation हो गए हैं तो उसको भी separately आपने present करना है। कैसे present करना है, we'll see that। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। It says an entity shall classify a non-current asset as held for sale if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. This is what we were discussing already, and this is paragraph number 6 of IFRS 5. What it says normally, generally, non-current assets are basically held by entities to use it, and they use it and they recover its carrying amount. But if the company, if the entity is planning to recover its carrying amount through selling it, then those non-current assets should not be stated within the category of non-current assets, rather than they should be stated under the category of non-current assets held for sale, and they are basically under the current assets category. Current assets category भी नहीं कह सकते, but that will not be non-current asset category, and that category should be separately disclosed. For this to be case, the following condition must apply. पहला, the asset must be available for immediate sale in its present condition. एसेट जो है, जो हेल्ड फॉर सेल कर रहे हैं, उसकी क्लासिफिकेशन चेंज कर रहे हैं, वो उसी हालत में बिकने के लिए तैयार हो। ये ना हो कि भाई इट नीड सम रिपेयर मेंटेनेंस और ऐसे नहीं बिक सकता। नो, इट शुड बी इन प्रेजेंट कंडीशन, इट शुड बी अवेलेबल फॉर सेल। द सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, मीनिंग दैट management are committed to plan to sell the asset. There is an active program to locate a buyer, and the asset is being actively marketed at price that is reasonable. अब ये ना हो आप कहते हैं नहीं जी हम तो तैयार हैं, वी आर रेडी टू सेल इट, हम लोग उसको बायर को भी लोकेट कर रहे हैं, बट द एसेट उसकी फेयर वैल्यू मार्केट में ऐसे 2 लाख की, एंड यू वांट टू सेल इट फॉर 300,000 और 400,000, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, द बिगेस्ट क्वेश्चन कम इनटू माइंड, सर ये पता कैसे लगेगा कि दीज थिंग्स आर मेट? ऑडिटर को कैसे पता लगेगा? तो ऑडिटर को अगेन वो ISA मैं 600 यही पूछने लगा। जी जी, मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रही थी कैसे ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की 600 की सीरीज है, जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन की है, एंड कंफर्मेशन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज एंड डायरेक्टर्स, ये सारी 600 की सीरीज में आते हैं। तो जो डायरेक्टर्स देखे, दे आर सेलिंग अ नॉन करंट एसेट, दैट डजंट मीन दे आर सेलिंग अ कार, एंटिटी है ना भाई। तो कुछ चीजें होती है जो कि जनरली उन्हें कॉमन सेंस लेके चला जाता है, प्रूडेंस जो होती है। वी आर नॉट सेलिंग अ सिंगल व्हीकल, दे आर सेलिंग अ प्लांट मशीनरी, कोई ऐसी चीज है, तो दैट विल नॉट बी सेल विदाउट द परमिशन ऑफ, विदाउट द अप्रूवल ऑफ फाइनेंस डायरेक्टर, राइट? बिकॉज फाइनेंस डायरेक्टर इज बेसिकली ऑथराइज्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स, वही सिग्नेटरी है, वही ऑथराइज है, वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो डायरेक्टर्स, एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, जब whenever I say डायरेक्टर्स, दैट मींस एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, तो जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स की मीटिंग होंगी, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग विल बी द प्रूफ ऑफ दीज ऑल थिंग्स कि एसेट इज इन अच्छा इमीडिएट सेल इन प्रेजेंट कंडीशन। ये कैसे पता लगेगा? ये आपके इंजीनियर के सर्वे से पता लगेगा। सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, और ये प्रोबेबल कैसे साबित हो रही है? मैनेजमेंट आर कमिटेड टू plan to sell, active program is there, actively marketed। ये तीनों चीजें कहां से पता लगेंगी? डायरेक्टर्स की मिनट्स ऑफ मीटिंग। अब सवाल ये आ गया, सर ये तो प्लांटेड हो सकता है, ये तो 2 नंबरी हो सकती है, तो सॉरी टू से 2 नंबरी बस ऐसे ही होती है ना फिर, ठीक है? तो अगेन द सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए अब ये डेट का कैसे पता लगेगा? जिस दिन पहली मीटिंग हुई होगी उस एसेट को सेल करने की, कि वी हैव प्लान एंड वी आर प्लानिंग टू सेल दैट एसेट, जो है उस एसेट को सेल करना है रादर देन यूज नहीं करना। तो कहां से पता लगेगा? वो जो पहले मिनट्स ऑफ मीटिंग होगी जिसमें ये डिसाइड हुआ होगा, उस डेट से लेके 1 year के अंदर शुड बी सोल्ड। ये शुड बी है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, इवन ये भी हो सकता है कि प्लान कैंसिल हो जाए, वापस आप उसको वापस ले, लेकिन इस पे फिर ऑडिटर ऑब्जेक्शन आता है, आपको उसे प्रूफ देने पड़ते हैं
कि क्यों हम लोग प्लान से वापस आ गए, इसीलिए उसने आगे कहा है इट इज अनलाइकली दैट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द प्लान विल बी मेड और दैट द प्लान विल बी विथड्रॉन। तो इट इज अनलाइकली, लेकिन अगेन वो ये नहीं कह रहा कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल लेकिन अनलाइकली है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सीन है तो फिर उस एसेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफिकेशन में लाया जाएगा, वो नॉन करंट एसेट्स में नहीं रहेगा। अच्छा, उसका इंपैक्ट क्या आएगा? अब वो मेजरमेंट में आ गया, मेजरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। इंपैक्ट क्या होगा? वो कहता है नॉन करंट एसेट्स दैट क्वालिफाई एज हेल्ड फॉर सेल शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट, जो कि कैरिंग अमाउंट आपके पास होगी। कैरिंग अमाउंट कैसे आ रही होगी? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा आप उस पे उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। हेल्ड फॉर सेल नॉन करंट एसेट शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अंडर द करंट एसेट्स। तो आप इसको करंट एसेट्स में हेडिंग दे के लिखेंगे कि ये नॉन करंट एसेट है, हेल्ड फॉर सेल, एंड इट विल नॉट बी डेप्रिसिएटेड। ऑब्वियसली व्हाई इट शुड बी डेप्रिसिएटेड? Where assets held under the revaluation model are reclassified as held for sale, these assets should be revalued using the method in IAS 16, property, plant and equipment, or IAS 40, investment property as appropriate prior to reclassification। तो दोनों में जो आपकी रिवैल्यूएशन मॉडल है वो सेम ही है, आप उसे रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर लगा लेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन कब होगी? जब ये डिसाइड हो जाएगा द एसेट विल बी sold rather than will be used, और इसकी कैरिंग वैल्यू रिकवर होगी थ्रू सेल rather than its यूज। और वो कैसे होगा? उसमें होगा जी वो एक्टिव मार्केट जो है सेल प्रोबेबल, हाईली प्रोबेबल हो, ठीक है जी, वो प्रेजेंट कंडीशन में अवेलेबल हो सेल होने के लिए, 1 ईयर के अंदर सेल हो जाए, और अनलाइकली हो के सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है वो आएंगे प्लान में। मेजरमेंट कैसे होगी? लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट जो कि ऑलरेडी मिलेगी, या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और उसे प्रेजेंट किया जाएगा करंट एसेट्स में, और डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं, एक छोटी सी सेल्फ टेस्ट एग्जांपल है। कहता है ऑन 1 जनवरी 2021 मिचेल को बॉट अ स्टैंपिंग मशीन फॉर 20,000। इट हैज एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years एंड अ नील रेजिडुअल वैल्यू। ऑन 30 सितंबर 2023 कब खरीदी? मैं पहले इसको डेटा लिखता हूं। ओके जी, सो फर्स्ट फर्स्ट जनवरी 2021 को मशीन खरीदी कितने की? इट सेज 20,000। सो $20,000 with a useful life of 10 years। अच्छा जी, on September 30th 2023 Mitchell Co decides to sell the machine and start actions to look at buyer. The machine are in short supply, so Mitchell Co is confident that the machine will be sold fairly quickly. Its marketed value at 30th September 2023 is 13,500, and its cost it will cost 500 to dismantle the machine and make it available to purchaser. The machine has not been sold at the year end. At what value should the machine be stated in Mitchell's Co statement of financial position at 31st December 2023? ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें एक तो उसने बता दिया कि 30th सितंबर को 2023 को उसकी फेयर वैल्यू कितनी है जी? उसकी फेयर वैल्यू है 13,500, और कॉस्ट टू सेल है 500, which means fair value less cost to sell is $13,000, राइट? अच्छा, ये हमारे पास आ गया, मैं इसको हाईलाइट कर देता
अच्छा, दूसरा अब हमें चाहिए क्या, कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू कैसे आएगी? कैरिंग वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पे फटाफट से आपको, चलो ये भी आइडिया हो जाएगा, टेबल बना लेते हैं जो कि नॉन करंट एसेट का हम लोग नॉर्मली डेप्रिसिएशन टेबल बनाते हैं। मैं क्विकली से यहाँ पे बना देता हूँ ताकि इजी हो जाए। यहाँ पे क्या होता है जी, ईयर्स होते हैं, यहाँ पे आपके पास ओपनिंग बैलेंस होता है, यहाँ पे आपके पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाता है, यहाँ पे आपके पास एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आ जाती है, और यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। अच्छा जी, अब याद रखें जो पहली डेप्रिसिएशन चार्ज होती है वो ईयर एंड पे होती है। तो 1 जनवरी 2021 को खरीदा तो पहली डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 31 दिसंबर 2021 को, क्योंकि ये एडजस्टिंग एंट्री होती है, याद रखना डेप्रिसिएशन की एडजस्टिंग एंट्री। तो ये एडजस्टिंग एंट्री जितनी होती है वो ईयर एंड पे होती है। ओपनिंग बैलेंस कितना था, 20,000 का था। डेप्रिसिएशन जो है वो 10% लेनी है, तो दैट मीन्स 20%, 20,000 का 10% जो है डेप्रिसिएशन आ गई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो इज इक्वल्स टू ये आ गई। और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास जो कैरिंग वैल्यू है, बल्कि इसको मैं कैरिंग वैल्यू ही लिखता हूं ताकि इजी रहे, ठीक है। कैरिंग वैल्यू विल बी ओपनिंग बैलेंस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एंटर किया, मेरे पास ये आ गया, ठीक है जी। उसके बाद 31 दिसंबर 2022 को आपके पास 18,000, 2,000, now this will be 4,000 and this will be what it will be, आपके पास जो है अब जो कॉस्ट है 20,000 की माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दैट विल बी 16,000। ये आ गई 31 दिसंबर 20। अब हम लोगों ने तीसरा करना है, दैट इज 30 सितंबर 2023 है, क्योंकि 30 सितंबर को डिसाइड हो रहा है। हमारे पास कैरिंग वैल्यू थी 16,000 की, डेप्रिसिएशन कितनी होगी क्योंकि 9 महीने हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन विल बी अगेन 2,000 का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग कैरिंग वैल्यू पे नहीं लेते, ठीक है, हम लोग कॉस्ट पे लेते हैं जब स्ट्रेट लाइन हो। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, ठीक है, 9 महीने हैं। एंटर किया तो दैट इज 1,500। तो हमारे पास जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी दैट विल बी 5,500। तो हमारे पास कैरिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 14,500। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई क्या, कैरिंग वैल्यू $14,500। अब वो कहता है आपने जो है जिस दिन डिसाइड किया उस दिन आपने किस पे नोट करना है। वो कहता है जी आपने फेयर वैल्यू जो इनमें से लोअर होगा, तो लोअर जो है हमारे पास लोअर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल इज 13,000, कैरिंग वैल्यू 14,500 है। तो लोअर हमारे पास 13,000 है। मांग क्या रहा था, वो कह रहा था एट व्हाट वैल्यू शुड द मशीन बी स्टेटेड इन मिचेल्स को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2023। तो दैट शुड बी ऑन दिस वैल्यू, ठीक है, इस वैल्यू पे हमारे पास वो रिपोर्ट होगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये लोअर ऑफ है, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल थी, तो हम लोगों ने कर दी। अब आते हैं बात डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की। अच्छा, ये जो नॉर्मली वैसे भी कंपनीज बेच सकती हैं, लेकिन जो मेनली होता है वो इसलिए होता है कि जब जस्ट एक मिनट सिर्फ, मैं मैसेज आया है अभी अभी, सुन लो, वेट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब होता क्या है नॉर्मली, आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी?
जी आगे। जी ठीक है। अब होता क्या है, वैसे भी नॉन करंट एसेट्स को उनकी रिकवर, जो कैरिंग वैल्यू वो रिकवर की जा सकती है बाय सेल, कोई कोई रीजन भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली होता ही है जब कंपनी ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू करती है तब मेजर लाइन ऑफ जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं इस तरह सेल करने के लिए। अब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस क्या है? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी that has either been disposed of or is classified as held for sale। या तो डिस्पोज ऑफ कर दिया है या उसे हेल्ड फॉर सेल के लिए क्लासिफाई कर दिया, मींस डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। एंड रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। देखिए ये क्या है, पूरी लाइन ऑफ बिजनेस है। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक कंपनी है जो कि एक एंटिटी है जिसके दो ब्रांड्स हैं, एक है वो जूते बेचती है, दूसरी टी शर्ट बेचती है। तो टी शर्ट इज अ लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है, जूते इज अ लाइन ऑफ बिजनेस, तो वो पूरे का पूरा लाइन ऑफ बिजनेस क्लोज हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि टी शर्ट्स की लाइन ऑफ बिजनेस में आप कोई मशीन रिप्लेस कर रहे हैं, नो दैट्स नॉट देयर। आप पूरे का पूरा टी शर्ट्स का बिजनेस ही डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, देन इट विल बी कॉल्ड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ठीक है। और ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, लेट्स सपोज कंपनी एक एंटिटी है, उसकी दुबई में भी बिजनेस है, वही वाली उसके अबू धाबी में भी है, उसके एलान में भी है, रासल, तो रासल हैमा वाला सारा सेटअप क्लोज कर रही है, देन इट विल बी कॉल्ड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। And is part of a single coordinated plan to dispose of a separate major line of business और geographical area of operation। तो सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान में होगा, ये नहीं होगा यार थोड़ा सा कर्टेल कर देते हैं, आपके पास जो है वो 1000 मशीनें थी यार, अब जो है ना वो बिजनेस जो है जो थोड़ा कम पड़ा है, यूं करते हैं 20 मशीन को भेज देते हैं, या 200 मशीन को भेज देते हैं, 800 मशीन के साथ काम चलाते हैं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। टोटली वो ऑपरेशन ही क्लोज हो रहा है। एंड इज अ सब्सिडरी, ये भी हो सकता है, इज अ सब्सिडरी एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली विद द व्यू ऑफ टू रीसेल। यह सब्सिडरी अभी दी गई। सब्सिडरी क्या होती है? सब्सिडरी होती है, मैं अभी सिंपल वर्ड्स में कहूंगा, फिर हम लोग इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर होगा ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी सिंपल कहूंगा, सब्सिडरी इज अ बिजनेस जिसमें एक कंपनी के जो कि पेरेंट कहलाता है, दे हैव मोर देन 50% शेयर, जो कि वोटिंग शेयर्स है वो होते हैं सिर्फ। दिस इज नॉट कॉल्ड सब्सिडरी, इसके अलावा और कुछ भी होता है, लेकिन अभी सिर्फ मैं ये कह रहा हूं जिसका एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस पे कंट्रोल होता है। कंट्रोल कैसे आता है? दैट यू हैव मोर देन 50% शेयर इन दैट कंपनी। तो एक सब्सिडरी है जिसको एक्सक्लूसिवली खरीदा इसलिए गया कि वो बिक सके। अगर ये तीन चीजें हो रही हैं तो फिर वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कहलाएगा। By showing the performance of discontinued operations separately, users can see the performance of remaining operations, enabling them to predict future performance more accurately। तो वो कहता है, IFRS 5 कहता है कि जो discontinued operations है उसको आपने separately रिपोर्ट करना है। सवाल ये है कहां पे रिपोर्ट करना है, पढ़ लेते हैं। कहते हैं an entity must disclose a single amount on the face of statement of profit and loss comprising the total of, एक सिंगल अमाउंट जो है वो फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे करनी है। जो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो तो बनानी है, उसके नीचे एक लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। और वो क्या होगा उसमें, वो कहां से आई होगी? वो पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से आया होगा। एंड पोस्ट टैक्स गेन और लॉसेज रिकॉग्नाइज ऑन द मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो डेफिनेटली सिंपल, जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आप एक लाइन में दिखा देंगे। अच्छा जी, वो कहता है एन एनालिसिस ऑफ दिस सिंगल अमाउंट मस्ट बी प्रेजेंटेड ईदर इन नोट्स और ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। द एनालिसिस मस्ट डिस्क्लोज द रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, रिलेटेड इनकम टैक्स एक्सपेंस, द गेन और लॉस रिकॉग्नाइज ऑन द मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको इसको सिंपल करके बताता हूं। वो कहता है आपने क्या करना है, आपने एक अमाउंट जो है वो जो नॉर्मल स्टेटमेंट बनेगी, नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगी, उसके नीचे एक अमाउंट डिस्क्लोज करनी है विद द नेम ऑफ, विद द हेडिंग ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, और उसका ब्रेक डाउन देना है। अब वो ब्रेक डाउन कहां दे सकते हैं? उसने दो बता दिए, कहता है नोट्स में भी दे सकते हैं और ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी दे सकते हैं। ज्यादातर जो है इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं देते, नोट्स में देते हैं। उसका रीजन ये होता है कि बहुत ज्यादा क्राउडेड ना हो जाए, क्योंकि IS1 यही कहता है कि आपकी स्टेटमेंट्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा क्राउडेड नहीं होनी चाहिए,
ठीक है जी, इसके ऊपर एक हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह हमारा आज का लेक्चर जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? कहता है सेंट वैलेंटाइन प्रोड्यूस कार्ड्स एंड सोल्ड रोजेस, however halfway through the year end 31st March 2016, the rose business was closed and assets sold off. Okay, assets sold off, ये held for sale नहीं किया, disposal हो गया। Incurring loss on disposal of non-current assets of 76,000 and redundancy cost of 37,000। redundancy cost क्या होती है? ये जब आप बिजनेस को क्लोज करते हैं तो देर आर कॉस्ट रिलेटेड टू redundancy। जब आप बिजनेस को क्लोज करते हैं तो कॉस्ट आती है, कोई जो है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होती है, कोई लीगल कॉस्ट होती है, तो वो सारी रिडंडेंसी कॉस्ट उसमें बीच में ले आया। कहते डायरेक्टर रीऑर्गेनाइज द कॉन्टिन्यूइंग बिजनेस एट कॉस्ट ऑफ 98,000। जो कॉन्टिन्यूइंग बिजनेस था उसको उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया। द ट्रेडिंग रिजल्ट्स में भी समराइज्ड एज फॉलोज। रेवेन्यू उसने दे दिया, कार्ड से भी रोजेस से भी सारा, अदर ट्रेडिंग भी दे दिया उसने सारा। हम पढ़ते जाएंगे, इसको करते जाएंगे। रिक्वायर्ड क्या कहते हैं? ड्राफ्ट करें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 और एक्सप्लेन करें हाउ IFRS discontinued operation presentation can make information more useful to the users of financial statement। तो इसका आंसर ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे ये वाला कर चुके हैं, ये वाला जो पैराग्राफ है। ठीक है जी, ओके जी, इसको करते हैं हम लोग। लेट मी स्टार्ट। एक्चुअली हमें बनाना क्या है? एक्चुअली हमें दो स्टेटमेंट्स बनानी है। ठीक है, तो एक नोट्स के लिए बनेगी और एक जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए बनेंगे। ठीक है जी, मैं यहाँ पे इस वाली के ऊपर लिखता हूं commercial। अच्छा जी, बिजनेस का नाम क्या है? सेंट वैलेंटाइन। अच्छा, बन क्या रही है? बन रही है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, और पीरियड क्या है हमारे पास? फॉर द पीरियड एंडेड 31st March 2016। ठीक है जी, अच्छा, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे डॉलर्स लिख दिया और यहाँ पे भी डॉलर। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ फ्रॉम, बल्कि यहाँ नहीं देता। अच्छा जी, इट इट विल स्टार्ट फ्रॉम द, जो नॉर्मल स्टार्ट होती है रेवेन्यू से स्टार्ट होगी। तो एक और चीज डाल दो हम लोग कल के लिए। हमारे पास रेवेन्यूज आगे, एक हमारे पास जी रोजेस की है, ठीक है, जो कि कॉन्टिन्यूड है। वो हमारे पास कार्ड जो है वो कॉन्टिन्यूड बिजनेस है, रोजेस क्लोज हो गया। तो हम दोनों को साथ साथ लिखते जाएंगे। वैसे तो ये ऊपर नीचे बननी चाहिए, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं सामने सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम कार्ड इज 650,000 एंड 320,000। लेट मी राइट इट ओवर हियर। 650,000 रोजेस से था और ये 320,000। असली तौर पे तो थोड़ी सी मैं काम चोरी ये कर रहा हूँ कि ये इसी तरह एक स्टेटमेंट हमें दोबारा बनानी चाहिए थी रोजेस की भी, लेकिन मैं एक ही डिस्क्रिप्शन के साथ दोनों लिख रहा हूँ। अच्छा जी, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स विच आर 320,000 and 150,000। सो 320,000 and 150,000, and we got what? GP is this minus this। okay bhai, and GP is this minus। ठीक है जी, हमारे पास जीपी आ गया।
अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब इसमें जो ऑब्वियस एक्सपेंसेस है वो कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। लेट मी राइट लेस ऑपरेटिंग expenses, which is distribution, and other one is spelling है administration and admin। ठीक है जी, कितना कितना है डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज 60 and 90, 60,000 and 90,000, और एडमिनिस्ट्रेशन 120 and 110, so 120,000 and 110,000। ओके। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है, कहता है अदर ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन टू बी एलोकेटेड टू कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ओके, वो देख लेते हैं। उसके बाद ये तो आपके पास आ गया यहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज दिस माइनस दिस माइनस दिस। अच्छा, और ये भी आ गया दिस माइनस दिस माइनस, ठीक है। ओके। अच्छा, यहाँ पे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मैं इसको लॉस कह देता हूं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अच्छा, वो कितने हैं, वो पहले तो ऊपर दे रहा है, देखिए वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था द रोज बिजनेस वाज क्लोज्ड एंड द एसेट्स सोल्ड इंक्लूडिंग लॉसेस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स ऑफ 76,000। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितने। अच्छा, अब अगर अलग स्टेटमेंट बनती तो अलग अलग स्टेटमेंट में, इस वाली स्टेटमेंट में ये ना आता लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, क्योंकि वो सिर्फ यहां पे आ रहा है। तो मैं एज इट इज, मैंने आपको कहा कि मैं इसको एक में ही बना रहा हूं, 76,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। एंड रिडेंडेंसी कॉस्ट, तो रिडेंडेंसी कॉस्ट भी ना आती यहाँ पे, कि कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन का खर्चा नहीं है वो है डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन का। अच्छा, उसके बाद कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन का उसने कहा है जी, द डायरेक्टर रीऑर्गेनाइज कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन। तो रीऑर्गेनाइज हुआ तो कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन का, तो रीऑर्गेनाइजिंग कॉस्ट जो है वो अब यहां पे आएगी 98,000 की, जो कि यहां पे नहीं आएगी। अगेन दोबारा दोबारा कह रहा हूं, जब डिफरेंट स्टेटमेंट्स बनती तो रीऑर्गेनाइजिंग कॉस्ट सिर्फ इस वाली स्टेटमेंट में आती, और बाकी दो जो है वो इस स्टेटमेंट में आते। अमाउंट हम लोगों ने लिख दी है, लेकिन वो ना आता। अच्छा जी, अब यहां से मैं इसको माइनस करता हूं ये, और ओके, और इसको भी बेस माइनस बेस माइनस एंट्री किया तो मेरे पास ये आ गया। अच्छा, ये क्या है, ये है प्रॉफिट और लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें से टैक्स और इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, जो कि फाइनेंस कॉस्ट है 17,000 31,000 की, जो कि वो कहता है एलोकेटेड टू कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्या, लेस टैक्स एक्सपेंस एंड फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा जी, फाइनेंस कॉस्ट कितनी है, दैट इज 17,000, और दैट इज 31,000। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा और यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया जी, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी, ये आ जाएगा माइनस इनपुट किया, and का आ जाएगा यही वाला। अच्छा जी, इसको तो हम डबल लाइन कर देते हैं। अच्छा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस।
ठीक है जी, ये स्टेटमेंट जब बन जाएगी तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, वो जो लाइन कहता था एक लाइन आप करेंगे, तो आप क्या करेंगे, नेट, इसको मैं करता हूं, नेट प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ठीक है, जिसे डिसकंटिन्यू कर दिया वो कितना है, वो हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। वो जो कह रहा था एक, अगर मैं आपको दिखाऊं उसमें, वापस जाता हूं जरा। See, an entity by showing the performance of discontinued operations separately, users can see the performance। ये वो है कि क्यों discontinued operations को अलग दिखाना है। कहता है an entity must disclose a single amount on the face of statement of profit and loss comprising the total। तो सिंगल अमाउंट ये आ गई है कितनी, -1 4, बल्कि इसको मैं इज इक्वल्स टू ये करता हूं, तो हमारे पास सिंगल अमाउंट आ गई ये। तो आप जो है यहाँ पे टोटल कर देंगे, हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। इसको डबल लाइन हम करेंगे, बोल्ड कर देंगे, और दिस विल बी नेट प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, ये शो करने से अब क्या हुआ देखें, अगर लेट्स सपोज ये शो ना किया होता, ये सारे का सारा नोट्स में होता, और ये शो ना किया होता, तो आपका जो है -139,000 आ रहा होता, तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड थिंक दैट ओहो ये तो बहुत ही बुरी कंपनी है, इसको छोड़ो, इसको रखते ही नहीं है। ठीक है, इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करते, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट शेयर मार्केट। ठीक है, तो अब उसने कहा जब आप इसको डिस्क्लोज कर देंगे तो पता लगेगा कि दैट वाज अ लाइन ऑफ ऑपरेशन जो कि डिस्क्लोज हुआ है, जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है। जबकि जो कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन है, जिसमें पोटेंशियल जो शेयर होल्डर्स है कैन इन्वेस्ट, सो व्हाट कैन दे डू, दैट इज अ प्रॉफिटेबल और नॉट, दैट विल बी बेटर फॉर डिसीजन मेकिंग। कोई सवाल आप लोगों को यहां तक? कोई सवाल नहीं है, चले ठीक है जी। हम जो है उसको इसको एंड करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूं। अब मैं आपको वो जो हमारा पिछला था IS 38 का और IS 2 का, उसका क्विज सेंड करता हूँ लिंक, बस उसको कंप्लीट कर लीजिएगा और अपने आप को असेस कर दीजिएगा कि अभी तक आपको कितना आ रहा है। ठीक है जी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मैं इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।